गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं प्रेरणा वासवानी, फाउंडर ऑफ प्रेरणा स्प्रेडिंग इंस्पिरेशन। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द ग्रेट फादर्स जिन्होंने हमें लर्निंग दी है, जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारा जो प्लेटफॉर्म है प्रेरणा स्प्रेडिंग इंस्पिरेशन, उसमें मैं अलग अलग जो है इंस्पायरिंग जर्नीज लेकर आती हूँ, अवेयरनेस सेशंस लेकर आती हूँ और मैं कोलैबोरेट करती हूँ इमर्जिंग ब्रांड्स के साथ। तो आज हमारी जो है पैनल डिस्कशन है विथ अमेजिंग थ्री एक्सपर्ट पैनलिस्ट आई कैन से। तो फर्स्ट मैं इंट्रोड्यूस करूंगी मिस रश्मि मिश्रा जी का। तो लेट्स वेलकम हर। So Rashmi ma'am is the educationist and she is the director of Inspiring Indian Women and she is from UK. So let's welcome her on our stage. Good evening, ma'am. So we are having another panelist expert, Ms. Sonal Jaj ma'am. She is the founder and creative director of Metamorphosis and she is the child counselor. She is award-winning educationist. Thank you so much. Welcome, ma'am. Thank you, Prerna, Thank for you. such a wonderful topic today. Good evening to everyone. Thank you. Good evening. So we are having third expert. She is the Rajni Shah ma'am. She is also the educationist and social activist. She is deputy director of Inspiring Indian Women. So let's welcome her all. Good evening, Rajni ma'am. You're on mute, ma'am. Rajni ma'am, you're on mute. Thank you so much for when others do, the fathers of the world, very happy. Sorry, ma'am, your voice is not clear. Hello, audible? Yes, bit audible. I hope audience आप सभी सुन पा रहे हैं. Thank you so much for giving us this platform. And I wish all the fathers of the world are very happy Father's Day. We all are sure that we are doing something good for our society. It will bring an impact to the society. So, thank you so much. Thank you for inviting me here. Yes. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आपने अपना कीमती वक्त दे के आप जो है ज्वाइन हुए हैं। रश्मि मैम इज ज्वाइनिंग फ्रॉम यूके, सो थैंक यू सो मच मैम। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज हिडन बैटल्स अंडरस्टैंडिंग द डिप्रेशन इन मिडिल एज वुमेन। आई थिंक दैट्स रियली अमेजिंग टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दीज डेज। तो मैम आप सभी से मैं पूछना चाहूंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज इंट्रोड्यूस अबाउट योर सेल्फ वन बाय वन। रश्मि मैम। Thank you so much, Prerna, for giving this wonderful opportunity on this platform, which is all about inspiring. Hello? Can Yes, you hear ma'am. me? Yeah. So I'm Yes, an I can hear you. education, a master's in English literature and have teaching since last 25 years in various boards and colleges. But at the moment, since my work on inspiring Indian women has taken over, and I am shuffling between London and Mumbai, so I am not working as a teacher anymore. But a lot of other things I'm involved in our NGO, not for profit, which is inspiring Indian women, based in UK as well as in India. Great, ma'am. That's all from Sonal ma'am, please. Okay. So Yes, I'm yes, thank Sonal you so much. Jaj, and yeah, wonderful to be associated with Rashmi ma'am. So I'm the founder and director of Metamorphosis, and which focuses on education, early childhood education, and it's a literary platform also. I'm the award-winning educationist, a global international speaker. I have mentored more than 1 lakh educators across the globe, and I have my books published on Amazon
and you can just click on the link and type my name and you will get the link and everything. And thank you to Rajni and Prerna for having me over here for this wonderful session today. A hard hitting topic, I think, which is most of the neglected topic now. So moving on to Yes, Prerna, over to you. Thank you. yes, Rashmi ma'am. Hello everyone, my name is Sakshi. I'm um, the vision was Northeastern sector and under the guidance of Western Command, I have been working with other organizations also, and there is this section and I uh, Rashmi ma'am, sorry to interrupt you, but your voice is breaking. Thank you, Shraddhanjali ma'am, for joining in and you liked our topic name. Thank you so much, audience who have joined in. आपके पास कुछ क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिलेटेड, यू कैन डेफिनेटली आंसर. I hope audience you can hear us. Am I audible? Yes, ma'am. Perfect. So this is Rajni Staff, Deputy Director of Inspire Women. Uh, We can't hear you, ma'am. these questions on different topics, including geopolitics and India's 76th Independence Day. So this is all. Thank you so much for giving me this platform. And I hope Thank you so much to all the experts for introducing yourself and doing all the wonderful work in your field. So meanwhile, रजनी मैम आई थिंक थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, तो हम लोग जो है फिलहाल कंटिन्यू करते हैं. तो मूविंग टू आवर टॉपिक, तो मैं जानना चाहूंगी कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ये जो है डिप्रेशन ला रहे हैं अमॉन्ग द मिडिल एज वुमेन एंड पर्टिकुलरली आई कैन से टू द होम मेकर्स. तो रजनी मैम प्लीज. बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको नॉलेज करना बहुत जरूरी था और आपने किया. जहाँ पे क्या होता है कि जब शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो प्रायोरिटी खाली खुद की प्रायोरिटी नहीं होती और ये होता है कि फैमिली और बच्चे, और जब तक टीम होते हैं, जॉब, करियर, और जिस तरह से वुमेन अपना पूरा 100% 200% नेचुरली वो उनकी जिंदगी बन जाती है परिवार को संभालना, और उसके बाद परिवार के बहुत सारी जरूरतें होती हैं. और तब अगर एक औरत परिवार का ध्यान नहीं देगी तो वो एक पूरा, वो कहते हैं ना, एक औरत आगे का समाज फ्यूचर है दुनिया में, तो वो पूरा हिल सा जाता है. तो वो और फिर एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है कि परिवार को पालना और एज अ माँ, एज अ पत्नी करते रहना. इस चकाचौंध और इस भाग दौड़ में दिन भर रात भर, फिर वापस सोना, फिर सुबह उठ के फिर लग जाना, करते करते उसे पता ही नहीं चलता कि कब वक्त चला गया और उसकी खुद की लाइफ खाली वही चार दीवारी में रह गई है. और मुझे ये मैंने बहुत देखा है कि इवन जो हस्बैंड हैं या फिर बच्चे हैं, वो एक्नॉलेज नहीं करते कि मम्मी आपने क्या, उनको लगता है ये नॉर्मल है, माएँ करती हैं, अरे खाना दे दिया, क्या पैदा किया तो क्या, लाइक यू नो, वो एक्नॉलेज है. और
Yes. अंत में जब वो 40 प्लस हो रही होती है और बच्चे अपने अपने रास्ते पे चल चुके होते हैं, तो उसे तब लगता है कि यार मुझे तो घर का इतना किया, मैंने वो भी एक्नॉलेजमेंट नहीं, मेरी खुद की आइडेंटिटी भी नहीं, मेरी खुद की इंडिविजुअलिटी, हमारे खुद के शौक सब कहीं धरे के धरे रह गए और मैं कुछ खुद के लिए कर नहीं पाई। फिर हालांकि वक्त कभी खत्म नहीं होता, आदमी फिर शुरू कर सकता है, बट किस तरह से उस डोर को वापस पकड़े और किस तरह से वापस उस अपने जो इच्छाओं को, जिसको वो दबा चुकी होती है, वो उस इच्छाओं को जगाने की कोशिश, थोड़ा सा स्ट्रगल होता है। तो डिप्रेशन होने Yes. लगता है क्योंकि परिवार भी आगे बढ़ चुका होता है, तो थोड़ा मुझे ये कारण बहुत Right. लगता है। Right. Yes. Yes. Totally agree, मैम. जी सोनल मैम प्लीज आप बताएंगे. Okay, so I hope everyone is relatable to English. अगर मैं English बोलूँ तो no problem, no. So you can understand, Yes. no. Yes. No issues. So okay. First thing is I would like to specify that when we focus on homemakers, we all women are homemakers, no matter what. Homemakers हम सब है. So we cannot tag that only homemakers are depressed. The homemakers who are Yes. connected to different professions, whether it is education, corporate, any kind of profession, even a fisherwoman in a train faces depression. So she may not have a designated position like us, but she is also facing the depression. So each and every woman is facing depression, irrespective of the job they are in. And to make matters more easier, we all are homemakers. सबको घर जाके खाना बनाना है, दोपहर का भी बनाना है, रात को भी बनाना है. They have to handle 10,000 responsibilities. And what are the factors? I think there is no factor at all. What helps them to come out and what gives them the stagnation period is that when you don't have a connectivity with the people, we need to have an interconnectivity with people. Now in the digital world, we get so many followers and we are just waiting for likes and comments and all that, which is making matters more worse. सो आप जब फेसबुक ऑन करते हो या ट्विटर ऑन करते हो, कुछ भी ऑन करते हो, आपका सबसे पहला क्या है? अरे वाह, ये देखो, ये तो वहां चले गए, गोवा चले गए, ये तो यूएसए चले गए. Everyone can go, each and everyone can go, but everyone has responsibilities, तो वो नहीं जा पाते हैं. और जब हम नहीं जा पाते हैं तो हम उन पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि वो नहीं जा सकता है, हम जा सकते हैं. वो नहीं कर सकता है, हम कर सकते हैं. But when you question the homemaker, we as homemakers can ask people, क्या आपको गोल रोटी बनानी आती है? कितने लोग होंगे जिनको आज गोल रोटी बनानी नहीं आती होगी? Why have people Yes. kept maids? They have got salaries, they have got good pay packages, but उनको आप बोलोगे किचन में थोड़ा सा काम करने को, they don't want to do it. So ये चीजें जो है ये इंटरकनेक्टेड है. इट इज नॉट दैट प्रोफेशन पे ही आता है. जब आप कोई भी अपने पर्सनल नीड्स को मीटअप नहीं कर पाते हो या आप अपनी क्षमताओं को पॉलिश नहीं करते हो, when you don't try to learn, when you don't try to skill yourself, you face depression. So I don't think there are any factors that create depression. हम खुद ही उस पे अपने आप को इनवाइट करते हैं. वी ओनली रिंग द बेल ऑफ द डिप्रेशन. फेसबुक ऑन किया, डिप्रेशन आ गया. इंस्टाग्राम ऑन किया, डिप्रेशन आ गया. जब हम दूसरों को अच्छे कपड़े पहनते हुए देखते हैं, अच्छी अच्छी चीजें करते हुए देखते हैं, डिप्रेशन एक सेकंड में आ जाता है. बट हम कितने लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं? बट आर वी एक्चुअली कनेक्टेड ऑन ए ह्यूमन लेवल? वी आर नॉट. आज हमारे चेहरों से मुस्कुराहट चली गई. कल आपने देखा होगा कितने लोगों ने मुस्कुराहट पे नहीं डाला. मैंने अपने प्लेटफॉर्म में लोगों को खींच खींच के बोला है कि आप मुस्कुराइए, मुस्कुराने से जीवन खिलता है. तो it Yes. is like people who are in a very higher designated position, they think कि नहीं हम ये काम नहीं कर सकते हैं या हमारी पोजीशन पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा. एंड आई टेल देम कि आपके पोजीशन 5 years की है. आफ्टर 5 years you will come back to us. After 5 years you will ring our door, you will ring हमारे जो फोन के मोबाइल में व्हाट्सएप मैसेज आएगा, हेलो सोनल मैम, हेलो प्रेरणा मैम, कुछ है हमारे लिए. तब हम आपसे पूछेंगे कि आपका पोजीशन कहाँ गया. आपका प्रिंसिपल थे ना, आपके तो प्रिंसिपल पे या आपके कोई डेजिग्नेटेड पोजीशन पे क्वेश्चन मार्क आ गया, फिर उनको डिप्रेशन ज्यादा आता है. सो इट इज लाइक अ ककून. वी हैव टू सपोर्ट ईच अदर. सब लोग एक ग्लोबल चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं.
सब लोगों के पास Yes. 90,000 रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. इट्स नॉट दैट वी आर फ्री एंड सिटिंग. वी आल्सो फेस डिप्रेशन बट वी डोंट शो इट. और हमारा जो डिप्रेशन है वो ऐसा नहीं है कि हम बैठ जाते हैं कोने में, हम फिर भी सामने स्क्रीन में आते हैं मुस्कुराते हुए और लोगों को साथ लाते हैं अपने कि आइए हम ग्लोबल चेंज करना चाहते हैं. तो आप जब ह्यूमन लेवल से कनेक्ट करोगे, इन स्पाइट ऑफ बीइंग फार अवे, रजनी मैम सो फार, प्रेरणा मैम इज सो फार, तो ये ग्लोबल एक्सचेंज कहते हैं इसको. सो डिप्रेशन के फैक्टर्स कुछ नहीं है. वी हैव टू, वो कहते हैं ना, अगर आई एम बिकॉज यू आर, तो आई एम ताकि वी आर का वो एक टैग लगना चाहिए. सो दिस इज ऑल फॉर द क्वेश्चन टुडे. प्रेरणा मैम, राइट, वंडरफुली एक्सप्लेन किया आपने सोनल मैम कि हम जो है ह्यूमंस के साथ कनेक्टेड रहेंगे तभी जो है हम लोग अपने कुकून से बाहर निकल सकते हैं, ना कि सिर्फ एक ही जगह पे बैठे रहने से जो है ना हम डिप्रेस्ड है, ना ही ऐसा बोलना चाहिए. तो रजनी मैम, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? यू आर ऑन म्यूट मैम. सोनल मैम और रश्मि मैम ने ऑलमोस्ट बोल ही दिया है. दोनों साइड है. एक तो है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते लेते हम वो जो जगलिंग है, मल्टीपल रोल्स करते करते उससे हम थक जाते हैं, तो वो एक रीजन है. और दूसरा है कि हम अपने आप स्किल्स नहीं हम डेवलप करते, वी डोंट पॉलिश आवरसेल्व्स, देन वी क्राई हम लोग डिप्रेस्ड. एक्चुअली द थिंग इज दैट कि आज के जमाने में कॉम्पिटिशन्स तो हर कोई करना चाहता है. एवरीवन इज इन द कॉम्पिटिटिव मोड कि हमें कॉम्पिटिशन करना है, बट कैसे करना है ये नहीं पता. पीपल ऑफन थिंक कि एक को जम करके हम इसके कंधे पर बंदूक रख के हम चला देंगे और हम जीत जाएंगे. दैट कैन नॉट बी डन. IIW का एक एग्जांपल, IIW जब फॉर्म हुआ 2016 में, रश्मि मैम ने एक एक लोगों को घर से बुला बुला के बाहर निकाला, वो भी इंडिया से जाके यूके में. इट्स नॉट अ जोक. ये एक दिन में नहीं हुआ. मेटामॉर्फोसिस जब पैदा हुआ, मेटामॉर्फोसिस एक दिन में नहीं हुआ. लोगों को बुला बुला के कनेक्ट करना, नेटवर्किंग करना, इट्स नॉट अ जोक. और जाके एक ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे लोग जुड़ते हैं. आज हमें दिखता है अच्छा ये पेज में 15,000 16,000 फॉलोअर्स है, इस मेटामॉर्फोसिस में सब इंटरनेशनल फॉलोअर्स है, नेटवर्किंग विमेन्स है, बट वो एक दिन में नहीं हुआ. that took years to form. और एक इंसान की मेहनत है जो पीछे बिहाइंड द सीन है, जिनको एक मतलब बहुत तकलीफों का भी सामना करना पड़ा. बुलिंग हुई, बहुत तरीके से उनको नीचे गिराने की कोशिश की गई, क्योंकि लोग अच्छा काम में साथ नहीं देते हैं. आप कुछ गलत करो, आपके साथ सब आएंगे, अच्छा करेंगे तो लोग नहीं आएंगे. उसके बाद आपने मेहनत कर करके जब आपने लोगों को इकट्ठा किया, आपने नेटवर्किंग एक साइट बनाया, एक सब कुछ बनाया, तो लोगों को लगता है कि ये तो बहुत इजी है, हम यहाँ से अभी इजीली हमें लोग मिल जाएंगे. ऐसा नहीं होता है. कंपटीशन करना है, हेल्दी कंपटीशन. आओ हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, जुड़ो, हम एक साथ आगे बढ़ेंगे. ऐसा नहीं कि किसी को नीचे दिखा के, नीचा गिरा के हम आगे बढ़ेंगे. कैन नॉट बी डन. और ये लॉन्ग रन तक चलेगा भी नहीं, क्योंकि आप एवरीथिंग कल यूनिवर्स आपको वही देगा जो आप यूनिवर्स को दोगे. आप यूनिवर्स को पॉजिटिविटी दोगे, यूनिवर्स आपको डबल पॉजिटिविटी देगा. तो आप अगर नेगेटिव चीजों से ही अपना काम की शुरुआत ही अगर आप नेगेटिव चीजों से करोगे, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट गुड रिजल्ट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू compete, because the market is big. So if you want people to follow you, if you want people to कि आपकी बातें पहुंचानी है, तो you have to create an impact. Now how you will create an impact? Not through the negative things. You have to post positive things. हर एक दिन हम लोग इतना मेहनत करते हैं, हम छोटी छोटी चीजों में हम पॉजिटिविटी ढूंढते हैं. तकलीफें किसकी लाइफ में नहीं है. वी ऑल आर वर्किंग हियर. हम चारों यहाँ पे वर्किंग है. हम अपने काम के साथ अपना चैरिटी वर्क करते हैं, जिससे हमें पैसा भी नहीं मिलता, लेकिन हम करते हैं क्यों? ताकि हमारा सोसाइटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बने. हम चारों का अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी फैमिलीज है, अपने काम है, लेकिन उसके बाद भी हम चाह रहे हैं कि हम एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करें. आज हम 4 है, कल 40 होंगे, 400 होंगे, फिर 4000 होंगे, 4 लाख होंगे. तो इसी तरह ना इम्पैक्ट क्रिएट करना है, तो पहले इस बात को सोचना होगा कि हाउ टू कम्पीट इन अ हेल्दी वे, एंड देन आप आगे बढ़ो. और की कमी नहीं है, प्लेटफॉर्म की कमी नहीं है, यहाँ पे भरे पड़े हैं.
बस हमें उस चीज को पॉजिटिवली आगे बढ़ना है और लोगों को भी ये बात बतानी है कि पॉजिटिवली अगर हम आगे बढ़े तो इसका रिजल्ट भले ही लेट हो लेकिन फेल नहीं होता है, इसका रिजल्ट मिलता ही। So that's it. Yes, I yes, yes, totally, yeah, I actually totally agree with Rajni also because she has seen all of us also. So the thing is that yes, when we go to a market or a shopping place, we always go for 10 to 12 shops. जब तक हमें हमें जो पसंद की चीज नहीं मिलती है हम वहां नहीं जाएंगे. Many people have approached जी, me to join the platform as a team member, but the only thing is that जो काम वो कर रहे हैं वो मेरे it's not my cup of tea. मेरा cup of tea कुछ और है. अगर तुम्हारे अंदर वो चीज correct, नहीं है तो सिर्फ नाम के लिए और एक पोजीशन के लिए आप उसके साथ जुड़ना चाहते हो और आप लोगों को बताना चाहते हो कि आप वो नाम के लिए जुड़ गए हो और काम नहीं करना है तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल because now I am running yes, my yes, platform totally alone, agree. totally alone. There is no team at all. Because मैंने शुरू में रख के देखा टीम जो होती है वो काम बिगाड़ती है संवारने के बजाय. So healthy competition बहुत necessary है और number one is see it's a over we all have burned midnight oil. रातों की नींद गवाई है और our family is supporting कि you should not get affected by any kind of a negative criticism. Only then they follow us. Right, अगर आपको इफेक्ट हो रहा है या आपको कोई yes, तंग कर रहा है my only solution is that don't think in your mental state कि हम कंपटीशन में है. नो वन इज इन कंपटीशन. हमसे बड़ा कंपटीटर वो है ऊपर. हमसे बड़ा कंपटीटर वो ऊपर विधाता है. right, उसके सामने हम बहुत छोटे से एक एटम है. So it is like there is no competition. We all are working together to make our world a better place to live in. अपने अपनी तरफ से हम क्रिएट कर रहे हैं, अपने जोन्स क्रिएट कर रहे हैं. जैसे अभी रश्मि मैम का मिशन कुछ और है, रजनी का मिशन कुछ और है, मेरा मिशन कुछ और है, आपका मिशन कुछ और है. So we all are collaborating and creating a better world. कोविड ने हमें yes, यही correct. सिखाया है कि अब वक्त है, अब संभल जाओ, मैं दोबारा ना आऊं. So this is the message Right, I right. think Rajni has tried to given out to wonderful explanation. Yes, yes, definitely. And I would like to add कि networking with like-minded people. बिल्कुल अगर लाइक माइंडेड पीपल नहीं रहेंगे तो वही सेम जो है क्लैशेस रहेगी एंड ये जो है जो मोटो रहता है मेन जो हमें एक दूसरे के साथ मिलके आगे बढ़ना है वो मोटो जो है फुलफिल नहीं हो पाता है. एंड मैं दूसरा जानना चाहूँ कि जैसे आजकल जो है बहुत सारे सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस रहते हैं विद द विमेन एंड एवरीथिंग एंड कुछ कल्चरल नॉर्म्स भी रहते हैं तो ये भी चीजें जो है मेंटली बहुत इफेक्ट करती है. तो व्हाट वुड यू लाइक टू ऐड द इनसाइट्स इन दिस रश्मि मैम? You're on mute, ma'am. You may ask that what other things affect women, right? Is that so? Have I understood correct? Hello? Sorry, ma'am, your voice Hello? is. Yes, ma'am. Yeah. Have I understood correct that you want to know that what other things affect women? Is that so? Yes, Yeah. ma'am. Uh, yes, exactly. The same echo thoughts which I will echo with what Sonal and Rajni have emphasized that ladies ought not to think about what others are doing and get into the competitive rat race or a shepherd kind of sheep attitude, but do their own, develop their own skill and have their own Yes, thought process and try and reach for the stars. At least they will reach the moon. And for that reason, they need to get in touch with like minded people, as you said, that people who would help. Surround yes, yourself with positive people, surround yourself with laughter, happiness, and manifestations, which is also very important these days that you can do it, you are beautiful, you are good, you are happy, things like that. Those words will really pull you out of depression and help you get what you desire to, because there's no uh, limitations. There's nothing like, this is done now, you can't do it, or this is yes, the age when you can't, because there's always time to start. I have seen so many people starting at about
starting a business at 45, at 60, and they are successful. They are able to do something and achieve their goals. So always time to work hard and do something. In fact, that is the time when you're free, don't have any responsibility, you don't have any money constraints also, you have support, and you can do it. You don't have to be like look after the children for homework, for their outing, the teenage tantrums. Well, that is a time when actually you can focus on your well-being and happiness. So women need to pull themselves out. This is the best time actually, the middle age. They say now that the new 30s is the 40s, or 50s is the new 30s these days. So where you Yes, can do yourself and reach your best. right, right, definitely, ma'am. Yeah, these days new 40s are the new 30s. We should, means ऐसा नहीं है कि एज इज जस्ट अ नंबर, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी टाइम. इट्स नॉट लाइक दैट कि नहीं हम लोग जो है 40 के बाद स्टार्ट नहीं कर सकते हैं. So very nicely said, ma'am. Sonal ma'am, would you like to add something? Okay, yeah. So societal expectations is, I will have to say, society every minute कुछ ना कुछ अलग ही expect करती है. Every minute, every minute. आपको Yes, वो कल मिलेंगे, बोलेंगे आप पतले हो गए हो. आज मिलेंगे, बोलेंगे मोटे हो गए हो. कल आपको बोलेंगे कि आप यहाँ क्यों गए थे. आज आपको मिलेंगे, आपका क्या रीजन था. So every minute the society is going to make its own perception. So we cannot stand at one place and just let society affect us with what they want and not what our objective is. So yes, societal expectations is just like वो एक static नहीं है, वो move on करता रहता है every minute. So I think we need to focus on ourselves, not let others' opinion define you. Number one is that you know your potential, you know you're doing a good work, you know you have good people to connect with you, and number two is you should have reliable people to connect with. For example, if A wants to share something with B, the B should be quite responsible enough not to leak it out, whatever it is. It's irrespective whether you have a personal grudge or no, whether you have had a bad time or whatever. आप reliable हो, आपकी education वहाँ दिखेगी. And to be very frank and honest, 80% society में people do not follow the path of integrity. Do not. They preach more, but they don't do. So I think societal expectations तो हमारे सारे वो ऑब्जेक्टिव में से कट ऑफ हो जाना चाहिए. वी आर नॉट हियर कि सोसाइटी को कब खुश करना है, कब ना खुश है, कब उसको पीपल प्लीजिंग जो है कि पीपल प्लीजिंग से हट जाना है. So we are not here for people yes, pleasing. Number two, और cultural norms में I want to say that traditions we all follow. Cultural norms में आज क्या आता है, डिजिटल अब्यूज कम करें. डिजिटल अब्यूज yes, बहुत हो रहा है और आप right, हाँ एक दूसरे की बुलिंग कम कर दो. Now what is happening? We are all interconnected with principals, teachers, educators, corporates. We don't know the other person's background and journey. So it is not necessary कि आपको XYZ ने अगर friend request भेजा है, आपको उसको accept ही करना है. Just because that person is a fourth person connection. But when you don't know the person directly or even via the second party, don't accept it. That is going to create more problems for you. And then that will make you go into depression. अगर आपको कुछ बोल देगा तो. तो these yes, things, cultural norm में आपने boundaries बनानी है. अपनी line of control खुद बनाना है. Don't let the other person take the authority to for you to give an explanation to him for the reasons of why and how. और सबसे बड़ा जो कल्चर जो है वो है आप एथिक्स फॉलो करो. एथिक्स मिसिंग है आज. एथिक्स आप नहीं फॉलो कर रहे हो. आप कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने भी अचीवर हो, आपका कहते हैं ना एक वो कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट अगर बाहर आ गया ना, आपके सारे बायोडाटा पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. द अदर पर्सन विल नॉट कनेक्ट विथ यू. So yes, these are the societal expectations, cultural norms. I think ये तो दिन भर every minute बदलेंगे. So we should not depend on it, what we want to do and what we are moving ahead for it. So this is my straight answer to the cut short for this.
that's very important point addressed you have कि डिजिटल एब्यूज आजकल बहुत हो रहा है। तो मेरा भी मानना यही है कि अगर हम किसी की तारीफ नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट हमें जो है उसके लिए बुरे कमेंट्स नहीं भेजने चाहिए। इफ यू डोंट एग्री देन लीव इट। सबके अपने अपने परसेप्शन है, सबने अपने व्यूज हैं, तो वाई शुड कि किसी को नीचे क्यों गिराना। इवन इन डिजिटली किसी का अकाउंट हैक करने का कोशिश करेंगे, किसी का कुछ करेंगे। Prerna, I would like to cut you off here कि किसी को नीचे गिराने का आप इफेक्ट क्यों हो रहे हो? वो गिरा रहा है तो उसकी अपनी पोजीशन ही क्या है कि आप अपने आप को इफेक्ट होने दे रहे हो? आप अपने आप को उसके वो बैलेंस करके देखो ना, वो कहाँ है, आप कहाँ हो। कैन ही डू व्हाट यू आर डूइंग? नो। तो उसको इफेक्ट मत होने दो, वो तो करेगा। बाकी डॉग सेल्डम बाइट, ऑलवेज रिमेम्बर। आई ऑलवेज रिमेम्बर, मुझे बचपन में भी स्कूल में ये कहा गया था, जो स्ट्रीट पे जितने भी डॉग्स होते हैं वो एक कुछ टाइम तक भौंकते रहेंगे, उसके तुम चुप नहीं करा सकते हो, तो ये अपना करके निकल जाएंगे, उनको शांति मिल जाएगी। आप अपना काम करो, डोंट लेट इट अफेक्ट यू। व्हाई यू वांट पीपल टू टेल यू अरे इट्स ओके, अरे हो जाएगा ठीक। डोंट गिव देम दैट अथॉरिटी कि मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ ये हुआ। अपने अंदर रखो, डोंट लेट द अदर पर्सन अफेक्ट यू एट ऑल। अपने मार्ग पे चलो। राइट। तस्नीम मैम, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? मैं एक बात बोलना चाहूंगी, ये जो के लिए एक बहुत बड़ा मतलब प्रेशर है, सबको अपना प्रेशर वो खुद ले लेती है कि मुझे परफेक्ट बनना है, परफेक्ट बीवी, परफेक्ट माँ, परफेक्ट बहू, परफेक्ट ये सबको परफेक्ट। क्यों भाई, हम इंसान हैं, हम नहीं है कि हमें परफेक्ट बनना है। वी आर ह्यूमन बीइंग्स, तो ह्यूमन बीइंग से गलतियां होंगी। और अगर हम सोशल मीडिया पे भी कुछ कर रहे हैं और अगर हमें गलती से भी कुछ किया या कर दिया तो दैट इज नॉर्मल, ये होगा हमसे, क्योंकि हम इंसान हैं, हम ज्योमेट्री नहीं है। तो जब हम अपने आप को ये कंसिडर करेंगे कि गलतियां हम करेंगे, उससे हम सीखेंगे और हम आगे बढ़ेंगे, तब जाके कोई प्रेशर हम पे आ ही नहीं सकता। लेकिन अगर हमने ये सोच लिया कि नहीं मुझे तो सबके लिए परफेक्ट बनना है, तब जाके वो प्रेशर क्रिएट होगा और डिप्रेशन होगा। तो लोगों का क्या है, लोगों का काम है कहना, लोग तो कहेंगे, मैनी माइंड्स, सबके अलग अलग सोच है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप लोग बोलेंगे जो आपको जानते ही नहीं है। Most of the people will talk that doesn't know about your journey, that doesn't know about your struggles, that doesn't know about your responsibility. उनका काम ही है ये, क्योंकि they have time. तो आप उस व्यक्ति को क्यों मतलब ये चांस दे रहे हो कि आपको ये बोले और आप उसको लो? वो बोल रहे हैं, उसको बोलने दो। एक चीज हमेशा माइंड में यही रख के चलना चाहिए कि we are human beings. We can make mistake, we will make mistake and we will learn from our mistake and we will grow. जब ये चीज माइंड में सेट हो जाती है, कोई टेंशन, कोई प्रेशर हमें छू भी नहीं सकता। और रही बात साइबर बुलिंग की, तो साइबर बुलिंग का सबसे इजीएस्ट वे है आंसर करना, टू इग्नोर। अगर हम इग्नोर करेंगे ना तो हमें कोई भी चीज अफेक्ट नहीं करेंगे। 10 पर्दे के पीछे बैठकर बोल सकता है, उसका मुंह है वो बोलेगा, बट दैट इज हमारे प्रधानमंत्री अगर बुली हो सकते हैं तो हम तो साधारण इंसान हैं, उनको फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। जब उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो हमें क्यों पड़ रहा है? वो अपना काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं देश के लिए। वो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमें दिया, आज चंद्रयान उन्हीं की वजह से सक्सेस हुआ। अगर वो उस बात पे बैठ जाती तो हमें चंद्रयान जो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट नहीं मिलता। तो बात यही है, अगर वो तो हम तो साधारण इंसान है, हमें लोग कहेंगे कहने दो, हमें बिंदास अपना काम करना है, बिकॉज वी एंड आवर गॉड नोज व्हाट वी आर डूइंग। वी आर फॉलोइंग द एथिक्स, वी आर फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स, वी हैव अ गुड लाइक माइंडेड पीपल अलोंग विद अस। और जिसको हमारे साथ नहीं बनती है, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, सीधी बात। वंडरफुल दर्शी मैम की इतना ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया। तो दूसरा भी आजकल जो है इवन इन लेडीज जो है हार्मोनल चेंजेस भी काफी होते हैं इन दी मिडिल एज, तो वो भी बहुत हद तक जो है ना कहीं मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करता है। तो उस दौरान जो है
क्या करना चाहिए एंड कैसे कुछ स्टेप्स लेने चाहिए ताकि फिजिकली भी वो जो है थोड़ा स्ट्रेंथ उनके रहे? इस पे मैं बोलना चाहूंगी, मैं आए एक्चुअली सेम केस की मम्मी के साथ हुआ था। शी वॉज मेंटली डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस। वो बेचारी बहुत ज्यादा परेशान थी आफ्टर दैट। सो आई सजेस्टेड हर कि यू फोकस ऑन योर स्किल्स, यू डेवलप योर स्किल्स। तो उनको पेंटिंग का बड़ा शौक था और वो ज्वेलरी मेकिंग एंड ऑल। He started doing that and after that उनका जो ये जो मूड स्विंग्स होता था, फिर जो पोस्टमॉर्टम्स है एंड ऑल दोज हार्मोनल चेंजेस के बाद जो प्रॉब्लम्स हुई ना, वो धीरे धीरे बिकॉज शी हैज एंगेज्ड हरसेल्फ इन दोज एक्टिविटीज सो मच एंड आफ्टर दैट शी स्टार्टेड स्माइलिंग बिकॉज ना वो जो व्हाट वी लाइक टू डू when we do what we like, that gives us immense energy. You know, our hormones also keeps changing, you know, and when we do what we like, that absorbs our body, and then those things help us to overcome the depression. वाह, अमेजिंग एग्जाम्पल कि क्योंकि जनरली जो है ना इस टाइम पे हमें पता नहीं चलता कि क्या करना चाहिए। हम लोग जो है थोड़ा और फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं, इरिटेट होते रहते हैं, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। एंड आपने इतना अच्छा बताया कि लेडीज जो है वो अपना उनका जो हॉबी है उनको फिर से वो रिस्टार्ट कर सकते हैं ताकि एंगेज रहेंगे और ताकि ये जो है उनको जो प्रॉब्लम आ रही है डिप्रेशन रिलेटेड तो वो भी नहीं आएगी। वंडरफुल एक्सप्लेन मैम। रश्मि मैम, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? Very well, Rashmi and Sonal. That बस आगे बढ़ते रहो, be focused, and there is no dream which cannot be achieved. It's all about family support, continuous family support, friend support, and perfectly has said by both of the panelists here. And what else to add? I think they've said it all. Thank you. Thanks. Sonal ma'am. Okay, for me, I think what I'm observing now is the disease should keep looking sweet 16 even after menopause, because they are not ready to accept the bodily changes happening inside them. They are not accept the phases that they have to pass through, and to merge into a territory where the young generation is dancing and going to the disco. They want to fit it, but they don't get that permission. So they go to lengths, and that creates more problems for them. So your journey is different. The person who is going for a disco or for something, उसकी journey अभी start होने वाली है. So it is a cycle. You cannot go back to what you have crossed, but accept what you have transformed into. Because your transformation will be so beautiful. Maybe the other person may not emerge as beautiful as a butterfly. Maybe the challenges that the other person might be facing may be more worse than what you may have faced. So menopause is, you know, जैसे हम periods की बात करते हैं, periods normal है, ऐसे menopause भी normal है. जब होना था हो गया, अब जब जाना है तो जाएगा. जब होना था तो we were not prepared. Cramps होते थे, stomach pain होता था, body pain होता था. We were not able to understand the technicalities and complexities behind it. हम 12, 13, 14 साल के थे, हमें इतनी खबर भी नहीं थी कैसे करना है, कैसे हैंडल करना है. हमारे पेरेंट्स भी इतने नॉलेजेबल नहीं थे कि हमें किस तरह से वो उस तरह से हमें ट्रेन कर सके. तो आई थिंक दैट वाज 30 years बैक. आई रिमेम्बर कि वो अपने नेबर्स को बोलते थे कि हमारी बेटी को बता देना, हमारी बेटी को समझा देना, rather than being a good friend to your daughter. आज हमारे पास बेटियां हैं, हम बैठ के सारी बातें करते हैं. तो द ट्रेंड हैज चेंज, द टोटल स्पेक्ट्रम हैज चेंज. मॉडर्नाइजेशन की बात नहीं है, ये है कनेक्शन. जनरेशन गैप जरूर है, बट इट इज अप टू यू हाउ यू हैव टू क्रिएट अ हेल्दी जनरेशन गैप, बिकमिंग अ फ्रेंड टू अ फ्रेंड and to your daughter and to the other people whom you are creating a change for. So menopause is a very gradual process. It shouldn't affect you. The only thing is that don't try to fit in the territory where you know you are going to be affected. आप खुद ही कुएं में जंप करना चाह रहे हो तो डिप्रेशन तो आएगा ही ना. जब आपको पता है कि आप वो 16 और 20 के एज ग्रुप में नहीं फिट होने वाले हो, why are you taking the risk and getting more connected to medicines later on?
तो ये चीजें जो है, I keep telling to my friends also. They keep telling me, so you have a good figure, why don't you join us? I said, no, I'm happy sitting behind the camera watching you all. That gives me more happiness. So it is up to you, how are you going to take it. Don't let it affect you in any way. Yes. Period ho, menopause ho, delivery ho, labor pain ho, these are all natural processes that every woman has to go through if she wants to take a chance. We cannot force anyone to go through it. तो ये सारी चीजें हम, अगर हम इस चीजें को पॉजिटिव वे में लेंगे ना, हम दवाइयों से भी दूर हो गए, डॉक्टर से भी दूर हो गए। पर हम कहते हैं खुद ही कुएं में जंप करना चाहते हैं, तो फिर कीड़े मकोड़ों का सामना तो करना ही पड़ेगा, फिर तो वी कांट डू एनीथिंग। तो आप वो मत ना, व्हेन यू नो कि तुम्हें वो चीज नहीं मिलने वाली है, उसका ऑपोजिट मिलने वाला है, विच इज गोइंग टू क्रिएट डिप्रेशन लेटर ऑन। फिर यही प्रॉब्लम आती है, फिर डायबिटीज हो रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है, एंटी डिप्रेशन टैबलेट्स खा रहे हैं, और ये और डिप्रेशन क्रिएट कर रही है, क्योंकि वो जो मेडिसिन है वो टेम्पररी रिलीफ देती है, वो परमानेंट रिलीफ नहीं देती है। फिर डिप्रेशन आ जाएगा, Yes. फिर आप कोई दौर से गुजरोगे, so you are unnecessary wastage of time, wastage of energy, wastage of your talent which is there inside you. अरे नहीं आप फिट हो रहे हो, आप फोकस कीजिए कुछ और पे, rather than telling the Yes, other person. correct. Yeah, so that is what menopause is, a very natural and accepted very happily. It's a beautiful process. Beautiful process. It start now. I think it is starting at the age of 40, 42 only now, because of the Yes. lifestyle diseases that the women are going through to fit into a tribe where they are not perfect to fit in. तो अपने imperfections को ले लीजिए, उनको दोस्त बनाइए imperfections को, जरूरी नहीं है हर कोई 100% परफेक्ट है। So this is all about Right, menopause. right. उसको ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। Wonderful insight, Sonal ma'am. And अभी देखा गया कि even diet and nutrition also affects the mental health of the ladies. तो इस एज में उनको क्या माइनर चेंजेस करने चाहिए रिलेटेड टू द डाइट एंड न्यूट्रिशन? तो कौन ऐड करना चाहेगा इनसाइट? Yeah, I think because I studied dietetics and nutrition for 4 years, तो अपना नॉर्मल डाइट रखो, बैलेंस डाइट रखो। आज बहुत लोग फ्लैबी मसल्स ना हो या फैट एक्यूमुलेशन ना हो, उसके वजह से ब्राउन शुगर के स्विच ऑन कर रहे हैं, फिर ब्लैक टी को स्विच ऑन कर रहे हैं, ब्लैक कॉफी। आई थिंक आवर बॉडी डजंट नीड ऑल दिस। आवर बॉडी नीड्स प्रॉपर डाइट, प्रॉपर, जैसे हमें स्कूल में सिखाया जाता था बैलेंस डाइट का पिरामिड क्या है, ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है, ऐसे ही आप लाइफ लॉन्ग फॉलो करते रहो, देन ऑटोमेटिकली द बॉडी हमारी एडेप्ट। पर आप बॉडी को ट्रिगर करते हो, जब आप बॉडी को ट्रिगर करते हो चेंजेस से, कि आप जवान दिखना चाहते हो, आपको आई मसल्स नहीं चाहिए, यू आर गोइंग फॉर बॉटॉक्स ट्रीटमेंट, यू आर गोइंग फॉर आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट, यू आर गोइंग फॉर लिप सक्शनिंग, तो ये चीजें हमारी बॉडी को और प्रॉब्लम दे रही है, और फिर डॉक्टर तुम्हें रेस्ट्रिक्शन कर देता है। आई एम यूनिवर्सल हीलर, सो हीलिंग में यही मेरे को कंप्लेंट्स आते हैं ज्यादातर कि हम ब्रोकोली नहीं खा सकते, हम ये नहीं खा सकते, हम दाल नहीं खा सकते। आई सेड व्हाई यू क्रिएटेड ट्रबल फॉर योरसेल्फ? जरूरी नहीं है, हमारी बॉडी को प्रोटीन्स चाहिए, हमारे इंडियन दालों में उतने प्रोटीन है जितनी बॉडी को चाहिए। वी ईट 1.5 कटोरी एट द मोस्ट, तो इतनी सारी तो नहीं खा रहे कि 1 किलो खा रहे, तो 1.5 कटोरी ऑफ प्रोटीन दाल डेली होनी चाहिए, वो हमारे सारे इंसुलिन लेवल्स को बैलेंस करता है। नंबर 2 इज जितना हो सके सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाओ, सीजनल ओवरडोज मत करो, सीजनल खाओ, क्योंकि कई बार क्या होता है जब मेनोपॉज आ रहा होता है 6 मंथ्स होगा, 2 महीने नहीं होगा, फिर 2 महीने होगा, 4 महीने नहीं होगा, तो ये एक साइकिल के थ्रू से पास करता है, एकदम से स्टॉप नहीं होता है, कई बार 1 साल नहीं होगा, फिर सडनली 1 ईयर के बाद होगा, तो ये एक साइकिल से गुजरता है। पर हम जब उस साइकिल से गुजरते हैं, वो पीरियड में उसको ट्रिगर करते हैं बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो वो फिर इम्बैलेंस होता है, हमारे यूट्रस पे प्रेशर पड़ता है और इंटरनल फंक्शनिंग में प्रेशर पड़ता है, फिर हम वापस उसी दौर से गुजरते हैं और फिर डिप्रेशन आता है। तो डिप्रेशन ऐसे होता है कि अभी तो 6 महीने पहले आया था, अभी 2 महीने हुआ ही नहीं, 2 महीने आया था, 3 महीने, तो ये एक साइकिल है, इसका you have to pass through it. Every phase is a cycle for a woman. Accept it with a smile, gracefully. Yes. Rashmi ma'am, would you like to add something?
Yeah, for me, I really want to again emphasize on the balanced diet because nothing should stop. And also, when you go through menopause, the women have little weight gain, and there is this is a natural process. The weight gain is there. So, balanced diet with a lot of fruits and nuts would really help. And I don't think so. Women at this point of time should go through dieting in that word. Uh, just a little bit of good diet is best and most needed. And for the weight gain, it's only you can avoid carbs during the night. That should do what you want to achieve. But other than that, it's quite normal and should go aging very beautifully through natural process, accepting the changes of your body, and just guiding the future generation, mentoring with your experience. That all will really help you get out of depression. Or if you can also go out on a holiday, on a ladies trip. Go out with ladies, like-minded ladies, have fun, have those pajama parties, there. What I want to say that is this: actually the time for you starts now. It's the me time. It's the time to have the best of the time. So you can decide any type of trips, outing, even go Himalayan trek, because it is not, there's nothing to say that, okay, you can't. You can, and go on. Outing is a very nice way to rejuvenate and come back and then feel better and fresh. So that would be my idea of getting out of depression, that holidays. Yeah. Amazing. Rajni ma'am, would you like to add something? I just everything has been covered. Just I want to add that छोटी छोटी चीजों में ना खुशियां ढूंढनी चाहिए. अगर हम छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढेंगे ना तो डिप्रेशन, पोस्ट पैट्रम्स और Yes. जो भी चीज है जो भी हमें बॉदर करती है ना वो हमें नहीं करेंगे. छोटी छोटी चीजों का ये मतलब नहीं है कि अपने एम्बिशन को छोटा करना. अपने एम्बिशंस को रख के भी हम जैसे अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, कहीं आउटिंग पे जाना, फ्रेंड्स के साथ बातें करना, लाइक माइंडेड पीपल के साथ नेटवर्किंग करना, ये सब चीजों में भी ना हम अपनी पॉजिटिविटी को एक्टिव रख सकते हैं. उससे भी हम अपने डिप्रेशन को बहुत हद तक दूर रख सकते हैं. बिकॉज हम जितनी बातें करेंगे, जितना हम कनेक्ट करेंगे, उतना हम अपने आप को समझेंगे. और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि खुद को एक पैरामीटर में नहीं रखना कि ये इस पैरामीटर में मुझे फिट होना है, उस ट्राइब में मुझे जाना है जहाँ पे सब लोग एकदम मतलब सोशल मीडिया में परफेक्ट, बिकॉज रियल लाइफ इज टोटली डिफरेंट. तो सोशल मीडिया में परफेक्शन का जो झांसा है उसमें नहीं आना है और अपने लाइफ को अपने तरीके से जीना है. बिकॉज लाइफ का ना बेसिक रूल्स कुछ नहीं होता. लाइफ में वही है कि दूसरों का अगर अच्छा ना कर सको तो बुरा ना करो, और किसी को ऐसी बातें ना कहो जो उसके दिल को लगे, और एक बाउंड्री सेट करो ताकि लोग आपका फायदा ना उठा सके. Being good is okay, but Yes. you cannot allow yourself to be abused by people. और abuse से बाहर के लोग नहीं करते हैं. If you have toxic Right. relatives also, you should set boundaries कि जितना हो सके कम से Correct. कम कम्युनिकेट करें उनसे, और अपना जो भी स्किल्स है जो उसको एनहांस करने, पॉलिश करने की कोशिश करें. और अभी तो सबके हाथ में सोशल मीडिया है, तो इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म. यूट्यूब में से आप हजारों चीजें सीख सकते हैं. तो उसको सीखिए, उसको अप्लाई कीजिए लाइफ में, उससे बिजनेस कीजिए, 2 लोगों को रोजगार दीजिए. देखना लाइफ कितनी आसान है और कितनी अच्छी है. जब हम दूसरों के लिए Yes. कुछ करते हैं बड़ी अच्छी आती है. तो यही हमेशा सोच के करना चाहिए कि अगर हमें भगवान ने इतनी कैपेसिटी दी है कि वी कैन feed ourselves, we can take care of ourselves, so we should always try to at least help one person. अगर हमने पूरे लाइफ में एक की भी जिंदगी मतलब चेंज कर सके तो आई विल फील कि ह्यूमन लाइफ तो मतलब लेना सार्थक है. तो दैट वी शुड ऑलवेज थिंक Right. कि
और अगर हम किसी की मदद ना भी कर सके तो वी शुड ऑलवेज थिंक नॉट टू हर्ट एनीवन, कि हम किसी को हर्ट तो नहीं करेंगे, जान के तो नहीं करेंगे, अनजाने से तो गलतियां हो ही सकती है, बट जानबूझ के किसी को हर्ट ना करें। तो दिस इज द सिंपल फंडा। यस यस, वंडरफुली सेड रजनी मैम। मैं भी यही सोचती हूँ कि है ना, किसी को दुख नहीं देना चाहिए। एंड अगर जो है हम खुद कुछ करना चाहते हैं, यानी कि वी शुड बी, मीन्स हमें जो है ना खुद को कैसे बेटर बनाना है उस पे हमें फोकस करना चाहिए, ना कि हमें दूसरों पे या फिर ये लोग क्या सोचेंगे इस पे ना फोकस करके हमें खुद को कैसे बेटर बनाना है, खुद को अपग्रेड कैसे करना है, उस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। एंड दूसरी चीज आजकल देखी गई है कि लैक ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ये चीज जो है वो भी बहुत आजकल जो है मिडिल एज वुमेन में डिप्रेशन क्रिएट कर रहा है। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि इस कौन से प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज हैं ताकि जो है ये लेडीज जो है डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं? तो रश्मि मैम, वुड यू लाइक टू ऐड? इसमें मैं पहले बोलना चाहूंगी, 1 मिनट में सबसे मतलब परमिशन लेती हूँ। एक मैं बात बोलना चाहूंगी विथ ड्यू रिस्पेक्ट, मैं यहाँ पे किसी के सेंटिमेंट्स को हार्म नहीं करना चाहती, लेकिन मैं ये बात बोलना चाहूंगी, मोस्ट ऑफ द वुमेन are lazy. They want a well-paid husband to pay their bills. और फिर एक एज के बाद बहुत लोग रोते हैं कि हम इंडिपेंडेंसी नहीं है। बहुत लोगों को नहीं मिलता वो अलग बात है, बट मोस्ट ऑफ द वुमेन आर दे हैव अ माइंडसेट कि वी नीड अ वेल पेड हस्बैंड। ये सबसे बड़ा कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का। जिस दिन आप सोचेंगे कि मैं एक फैमिली में मेरा इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा एंड आई विल कंट्रीब्यूट, आपको कोई रोक नहीं सकता। अनएम्प्लॉयमेंट आपने खुद क्रिएट किया हुआ है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, नॉट इन ऑल द केसेस, हियर आई एम करेक्टिंग कि नॉट इन ऑल द केसेस। बहुत लोगों को नहीं मिलती, मतलब प्लेटफॉर्म नहीं मिलता या सुविधाएं नहीं मिलती, पर जिनको मिलता है वहां पे भी बहुत लोगों का देखा गया है किसी तरह लड़कियां ग्रेजुएशन पास करने के बाद उनको शादी करनी है, एक हैंडसम इनकम वाला हस्बैंड चाहिए जो उनके सारे डिमांड्स को फुलफिल करेगा, और जब वो नहीं कर सकता तब वो डिप्रेशन में पड़ जाती है। क्यों भाई? You are well enough, you are educated, you have everything, why you can't apply for jobs, why you can't enhance your skill and start doing any business? ऐसे आप डिप्रेशन से भी दूर रह सकते हो, आप अपने फैमिली में भी रिस्पेक्ट पा सकते हो। अगर आप पहले से ही ये सोच लोगे कि माय हस्बैंड इज देयर टू पे द बिल्स, तो फिर फेमिनिज्म की बात मत करें। फेमिनिज्म की बात वही करें वेयर यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी इन द इक्वल अमाउंट, अदरवाइज डोंट टॉक अबाउट फेमिनिज्म, दैट्स इट। Yes, nicely said, ma'am. Rashmi ma'am, would you like to add something? Yeah, for me, that because I believe that because of the family constraints, they might have not gone for any job or anything. But later on, when you realize that it is time to actually get some, some skills in hand, so that you can earn and do something. Because making money is not only for your daily needs, but it is also for your confidence building. That you are an Yes, individual, you something, you are good to go. It also means that you are capable enough. Sometimes you need that find that you are good enough to do something and not just looking after home and family. So this is, I think, one should go for some online classes, some kind of maybe start some classes at home for the children or neighbors, or try and because there comes a time when you are not eligible for job also, like the daily jobs which are the normal jobs. So you can do something of your own where you can be if you have some skills, make your hobby into profession. You can start businesses like travel businesses or something which would help you gain some kind of confidence and followers. So that is very important for every woman to do. Yeah. yes. Rightly said, Rashmi ma'am. And Sonal ma'am, would you like to add something? Connecting with this, I think lack of confidence is the biggest drawback. They don't have the confidence in themselves, and they try to fit in those areas where they don't want to learn.
they just want a shortcut route. As Rajni has mentioned, that is one aspect of it, but they just want to go for a shortcut route कि आसानी से मिल जाए, हमें मेहनत नहीं करनी. So I always say you have to pass through the process. There is always a process through what you want to achieve. Nobody can just jump and take it. Animals have that keen sense of jumping on the prey and eating it, but we need to go through a lot of churning and everything, तब जाके हासिल होता है. तो ये चीजें बहुत सारे controversial subject होगा. It's not a very small area, but definitely lack of confidence and lack of proper support. Friends, see, you won't get 100% real friends to support you. That is out of the question. एक दो कोई होगा तो होगा, वो भी अगर उसको अपना मतलब होगा तो करेगा. अगर उसके उसमें उसका फायदा नहीं दिख रहा है वो नहीं करेगा. उसको क्या मिलेगा आपको सपोर्ट करके? हर कोई आपके जैसे, मेरे जैसे, रजनी जैसे, रश्मि मैम जैसे नहीं है. सो ये चीजें मैटर करती है. एंड नंबर 2 इज अंडरस्टैंडिंग द अदर पर्सन वेरी वेल. ये चीजें आज बहुत वो है. आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे कि सामने वाले को क्या चाहिए, कैसे करना है, एंड इफ यू आर एबल टू हेल्प इट आउट, ओनली देन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट जस्ट फॉर द सेक आप उसको कनेक्ट कर रहे हो, उसकी सारी बातें सुन रहे हो और आपको नहीं कर पा रहे हो, और मतलब आपको हीरो में बनना है उसकी स्टोरी में, और एट द सेम टाइम बिकमिंग अ हीरो एंड देन शेयरिंग हर स्टोरी विद 10 more people for entertainment, I don't think this can create a better society. तो ये चीजें, ये कल्चर जो है, ये एक डिप्रेशन का कॉज है. क्योंकि जब सामने वाले को पता चल जाता है कि उसके साथ एक तरह का ऐसे मैनिपुलेशन बिहेवियर हुआ है या नार्सिसिज्म बिहेवियर हुआ है, तो इट अफेक्ट्स अ पर्सन अ लॉट. उसका जो आगे बढ़ने का जो प्रोसेस है वो रुक जाता है, स्टैग्नेट हो जाता है. So why to create such kind of barriers for other person where you're not able to help it? We didn't ask you, we didn't knock at your doors, you offered help, we allowed you entry inside. Nobody is going and asking any unknown person for a help. आदमी उससे ही कनेक्ट करेगा कि जिससे उसको 100% श्योरिटी हो. So ये चीजें, ये अपने आप को खुद ही एक अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस अपने आप आना चाहिए, स्किल डेवलप होनी चाहिए कि हर कोई रेडी नहीं है तुम्हें हेल्प करने के लिए. एंड दैट इज, ये एक बार आ जाएगा ना, सारा डिप्रेशन बाहर चला जाएगा. यस, वंडरफुल इनसाइट मैम. एंड इसके साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि जैसे फैमिली सपोर्ट भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट है. तो फैमिली कैसे इस चीज में सपोर्ट कर सकती है? एंड फैमिली में अगर कोई लेडी डिप्रेस्ड है उनके फैमिली में, तो कैसे फैमिली उनको उभरने में मदद कर सकती है? तो एनी इनसाइट्स मैम? सी, a person who is there in the family, अगर वो न्यूली मैरिड वुमेन है उसके अपने स्ट्रगल्स अलग है. अगर वो न्यू मदर है उसके अपने स्ट्रगल्स अलग है. अगर एक इंसान जॉब के लिए ढूंढ रहा है उसके स्ट्रगल्स अलग है. होम मेकर के स्ट्रगल्स अलग है. तो एवरी रोल, एवरीथिंग हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ स्ट्रगल. सो व्हाट अप्लाइज फॉर वन पर्सन मे नॉट अप्लाई फॉर द 10 people. उसको किस तरह से उसका चैलेंज फेस करना है उसको खुद ही डेवलप करना पड़ेगा. अभी जैसे फॉर एग्जांपल न्यू मदर जो है वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन फेस करती है. उसको पहले 40 डेज अपने मम्मी के घर रहना है, फिर उसको अपने इन लॉज के घर वापस जाना है. वो एक ट्रांजिशन फेज है, वो उसके लिए बहुत भयानक होता है. कहाँ उसको इतना लाड़ प्यार मिला है और कहाँ वो सडनली एक ऐसे माहौल में जाने वाली है जहाँ उसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड होने वाली है. वो प्रोसेस उसके लिए भी बहुत टफ है. फिर होम मेकर, बच्चे छोटे होते बिजी है, फिर बच्चे बड़े हो गए, अब बच्चे इंडिपेंडेंट हो गए, वो कैसे करे, कैसे हैंडल करे, तो उसकी जर्नी अलग है. तो ऐसे हर एक का अपना एक स्ट्रगल है. तो उसको खुद ही चैनलाइज करना चाहिए, उसको अपने खुद ही एक आउटलेट ढूंढना चाहिए. कई लोग सत्संग में जाते हैं, कई लोग किटीज ज्वाइन करते हैं, कई लोगों को यूवी आउटिंग चाहिए एवरी डे. तो उनका अपना एक तरीका है. कई लोग हैं वो सोशलाइज है ही नहीं, लाइक मी. अभी I don't go to any social parties, I don't mingle with friends, and that is my moment of joy. हम नहीं कह सकते कि मुझे जाना ही जाना है, लोगों को खुश करने के लिए जाना है. नहीं, जब मुझे खुशी नहीं मिल रही है मैं क्यों जाऊं? तो लोगों को खुश करने का आप जिस दिन वो बंद कर दोगे ना, कैनवस ताला मार दोगे ना, लाइफ लॉन्ग खुश रहोगे. पर आप उनको खुश करने के लिए जा रहे हो कि
एक सोसाइटी स्टेटस और रेपुटेशन के लिए, देन लाइफ लॉन्ग यू विल बी इन डिप्रेशन। आज दूसरा आ गया, कल दूसरा आ गया, तो कोई ना कोई तो आपका दरवाजा खनखनाएगा, खटखटाएगा डेली, कुछ ना कुछ वजह से। That's all. Yes, yes, totally agree, ma'am. Rashmi ma'am, would you like to add something? You're on mute, ma'am. Family is very, very Rashmi ma'am, you important. are. Family. Can you hear me now? Yes, yes. Yeah. So for obviously for any woman to reach heights, family is very important. Whether in the form of parents, whether husband, whether children, whether in-laws, anybody at home, it's very important that they understand the woman and let her live for herself as well. And without this, it's very difficult for any woman to achieve. And to leave the family is not a question at all. They have to be together with family and go ahead. So it is not easy without family support. And maybe even if one person agrees to your dream, maybe take that person in confidence, talk it out, and do whatever you can, and maybe ask that person to make others understand in the family, and you have to talk it out to go ahead in life. And no woman can do anything without the family support. Input. It's pertinent. Yes, totally agree, because without family support जो है कोई कुछ नहीं कर सकता है. Even for the simple growth also, कि अगर फैमिली सपोर्ट रहता है तो एक बूस्ट अप मिल जाता है, एक डबल एनर्जी आ जाती है कि नहीं आगे बढ़ना है. जैसे बोलते हैं ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस ये 4 शब्द जो है जाए तो डेफिनेटली स्काई इज द लिमिट. तो रजनी मैम, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी, फैमिली सपोर्ट तो बहुत इम्पोर्टेंट है. आज शायद फैमिली सपोर्ट हमें इतना मिला है बोल के हम चारों यहाँ पे हैं और हम इतने अच्छे से हम इस बात मतलब चर्चा कर पा रहे हैं. बट मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगी, अगर फैमिली सपोर्ट ना भी करे तो पहले तो खुद के सपोर्ट करना होगा. खुद सेल्फ सपोर्ट बनना होगा. बाद में फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, आस पड़ोस के सब आएंगे, और सक्सेस जब मिलेगा तब तो सभी आएंगे. सक्सेस मिलने पर तो लाइन लग जाएगी, लेकिन सबसे पहले खुद का सपोर्ट ये दिमाग में रखना ही होगा कि मुझे कुछ बनना है. और जिसको ये चीज है कि मुझे कुछ बनना है, उसको ना फैमिली रोक सकती है, ना समाज रोक सकता है, ना कोई रोक सकता है. उसके लिए दरवाजे भगवान खोलते हैं. फिर उसका सारथी बनता है श्री कृष्ण. तो जिस तरह से अर्जुन का सारथी बना था श्री कृष्ण, हम सबके पहले तो अपने आप का सारथी बनना पड़ेगा. वंस वी आर सपोर्टेड बाय आवरसेल्फ, एवरीथिंग बिकम्स इजी. मैं तो यही समझती हूँ, क्योंकि फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फैमिली, ये सब कुछ ओवरकम किया जा सकता है. लेकिन जब हम ही पहल नहीं करेंगे तो फिर कैसे हम कुछ करने की सोच सकते हैं. खुद को कंपटीशन खुद से रखना होगा. खुद को डेली कैसे हम बेहतर बनाएं, इस बारे में सोचना होगा. दूसरों से compete करने से पहले हमें सोचना है कि हमें क्या आता है, हम किस चीज पे फोकस करना चाहिए. हर किसी का लाइफ पर्पस एंड लाइफ गोल्स अलग होता है. हम चारों यहाँ है, बट चारों का लाइफ गोल्स अलग है. हम एक पर्टिकुलर टॉपिक पे हम एग्री कर सकते हैं, बट ये नहीं, ये पर्टिकुलर टॉपिक हमारा लाइफ नहीं है. तो हमें अपने लाइफ पर्पस को समझना होगा, लाइफ गोल्स को समझना होगा, और फिर हमें उस हिसाब से आगे बढ़ना होगा. और आगे तो हमें ही बढ़ना है. जैसे अगर फैमिली ने सपोर्ट भी किया, सब कुछ दिया, बहुत सारे ऐसे केसेस में है फैमिली इतना करती है, मतलब वी कांट इवन इमेजिन, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट 0 आता है. बिकॉज जिसको करना है, जिसके द्वारा ये काम होना है, वही आगे नहीं बढ़ रहा है. तो वही अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो फिर कैसे होगा. हमें भी दिक्कतें आई. हम चारों यहाँ जो बैठे हैं, हमें भी पूरा 100% सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन हमारे मन में ये था कि हम कुछ करें, और आज हम यहाँ हैं. तो यही बात है कि पहले खुद का सपोर्ट करो और फिर बाकी सपोर्ट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा. और अगर ना भी चले तो कोई बात नहीं, यूनिवर्स है, यूनिवर्स एकदम सपोर्ट. मैं तो
यही मानती हूँ, वट एवर वी गिव टू यूनिवर्स, यूनिवर्स विल गिव अस बैक इन डबल फॉर्म। तो अच्छाई करे, अच्छाई फैलाए, लोगों का भला करने की सोचे, अगर भला ना कर सके तो एटलीस्ट बुरा ना करे। बाकी तो सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है, वो अपना काम करेगा है। और हम सब एक्चुअली में पपेट है, हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते जब तक वो नहीं चाहता। तो जो भी हो रहा है ना, वो उसके इशारों पे हो रहा है। तो उस पे अगर भरोसा है ना, तो फिर कुछ चीजें मायने नहीं रखती, सब कुछ आसान। यस यस, वंडरफुली स्टेट रजनी मैम कि हम खुद का सपोर्ट नहीं बनेंगे तो हम किसी और का सपोर्ट का भी कुछ मतलब नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें खुद का सारथी बनना है, तभी हम दूसरों का सारथी बन पाएंगे। तो So it is टॉपिक so जो है good इट्स to वेरी वास्ट। it is so good to see Rajni as my student growing into a wonderful person. For 4 years before when I met her, यस यस my God, and now आज कॉन्फिडेंस देखो, आज उसका जज्बा देखो, टच विद, गॉड ब्लेस यू। यस यस यस, वंडरफुल। तो ये टॉपिक जो है बहुत ही वास्ट टॉपिक है, आई कैन से, एंड वी हैव We are short of ऑलमोस्ट time. क्रॉस 1 hour। यस यस, वी आर इन शॉर्ट ऑफ टाइम। एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस जो भी जुड़े हुए हैं अभी तक, एंड आई होप आपको ये सेशन जो अच्छा लग रहा है। तो एट द एंड आई वुड लाइक टू एंड की जो है कि एक तो आप सेल्फ केयर टेक्निक बताइए जो लेडीज जो है वो अपना सकती हैं, इवन मेन ऑल्सो कैन अप्लाई, एंड उसके साथ व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू आवर ऑडियंस, रश्मि मैम? Yeah, for me, I would just tell everybody that keep focused. Don't deviate from the path, because there are a lot of distractions and a lot of people trying to stop you, trying to pull you down, but it doesn't matter. You should not feel any kind of insecurity, but keep moving on, because where there is will, there is way. So that I would say that don't be affected by anything that goes around you. That's it. That's really great, ma'am. Sonal ma'am. Okay, so today is Father's Day, and hats off to all the fathers behind all the successful women and all the women who are marching ahead Yes. with confidence and pride. Hats off to those husbands behind those women. And I would like to say, all the women who are still achieving their goals and marching ahead, वो भी एक कहीं ना कहीं फादर का रोल प्ले कर रही है, वो भी कहीं ना कहीं एक फादर का रोल प्ले कर रही है। As the topic says, hidden battles. No one knows what are the hidden battles. तो हिडन बैटल्स वही होते हैं, एक औरत भी एक फादर का रोल प्ले कर रही है और फादर भी इक्वली मदर का रोल प्ले कर रही है। सो इट इंटर रिलेशनशिप है, कोई भी एक दूसरे के बिना आगे नहीं बढ़ेगा। सो hats off to all the mothers and the fathers who are playing both the roles together. You get this accolade from, I think, Prerna, Inspiring Prerna, Metamorphosis, IIW. हम सबके तरफ से आपको hats off to each and every father out there who are pushing the Yes. women force and applauding the women force. मतलब ये है कि पुराने जमाने में तो आगे नहीं आने देते थे, आज पुश करते हैं, आज एनकरेज करते हैं। अगर उनको लगता है वो नहीं आ पाते तो वो अपने जो भी फ्रेंड हो, वाइफ हो या कुछ भी हो, उनको अगर उनके अंदर कोई कैपेसिटी या कैपेबिलिटी दिखती है तो उनको एनकरेज करते हैं। एंड दैट आई थिंक इफ यू हैव अ सपोर्टिंग हस्बैंड, अ सपोर्टिंग फादर, जो आपके ड्रीम्स को रियल में बदलना चाहते हैं, नथिंग मोर देन दैट। हैट्स ऑफ टू ऑल दिस फादर्स, हैप्पी फादर्स डे टू ऑल। That's really great, ma'am. Rashmi ma'am. I would like to say that behind every successful woman there is a progressive father. तो कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिव फादर की वजह से ही ये आज हम लोग प्रोग्रेस कर सक रहे हैं और हम प्रोग्रेस के बारे में भी बात कर सकते हैं, क्योंकि पहले के जमाने में तो ऐसा नहीं होता था। Women are not allowed to speak in public. So when today we are progressing, that means our nation is progressing because of the progressive man. So we should not neglect men also. And as today is a Father's Day, I would like to congratulate all the women who have a amazing father in their house, and you should take care of your parents, and no matter what and how, but you should take care as their and consider them as your pillar, because of that you are doing what. Yes.
They definitely become children at this age. They want your pampering. They want that, They want the but pampering. Yes. also they should also pamper their parents when they can, because now we all know the life has become very busy. We all are very busy in our life. Even our parents don't have time. But whenever we have time, we should spend time together, because we don't know how much life is left with us. So we should always dedicate our time to our family and our work and balance everything properly. And I think when we can create an impact in our home, we can create a positive impact in the society. So that's it. That's really amazing, Rashmi ma'am. एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, टू ऑल द एक्सपर्ट्स. आपने इतना कीमती वक्त दिया, इतने अच्छे अच्छे इंसाइट्स दिए, एंड थैंक यू टू ऑडियंस. आप अभी तक जुड़े हैं हमारे साथ. आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन कमेंट अस. डेफिनेटली आवर एक्सपर्ट्स विल डेफिनेटली आंसर्स यू. एंड थैंक यू सो मच रश्मि मैम फ्रॉम यूके. यू हैव गिवन योर प्रीशियस टाइम. टाइम जोन का भी जो है डिफरेंस है. थैंक यू सो मच सोनल मैम, एंड थैंक यू सो मच रश्मि मैम. दैट्स रियली वंडरफुल सेशन विथ यू, एंड डेफिनेटली हम लोग जो है आगे बढ़ते रहेंगे एंड ऐसे ही इम्पैक्टफुल सेशंस करते रहेंगे ताकि जितना हो सके हम अवेयरनेस क्रिएट कर सके. So thank you so much once again, and have a great time, have a great future. Thank you. Thank you. Thank you so much everyone for joining us. And again, first of all, sorry, at the end again, happy Father's Day to all the great fathers. ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए लड़कियों को एंड अपनी लेडीज को, ताकि वो और भी आगे बढ़ सके और भी प्रोग्रेस कर सके. एंड विल मीट यू अगेन विद अनदर एक्सपर्ट्स. टेक केयर. बाय बाय.